Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In our today's video, we will talk about how to present theory papers. As we all know, theory papers are slightly difficult to score and they are less scoring than practical papers. You need to know some presentation tips, some presenting tips, and important steps you need to put in your answer so that they can look presentable, clear, and readable. Okay? When I'm stressing so much on presentation, I mean you should always know where to change the paragraphs, where to give headings, how to answer your point, how to answer in points, how to highlight your specific keyword and important words or points, how to end your answer. I mean, each and everything counts in presentation. The way you write your answer, if you're writing in exact story form or literature form where you're not changing any paragraphs, not giving any diagram or flow chart, or do not highlighting your points, definitions, headings, subheadings, you're just writing as like a literature or a story, there are chances that you might get less marks than you deserve. No doubt you are writing exact answer, you are writing to the point, you have a knowledge, your content is very much relevant, very much knowledgeable as compared to others who are giving their answers in presentable manner, but then also you will not secure more marks than the students who are giving their copy in a presentable manner, because stuffs which are written as in story type without any paragraph change, without any heading, point, commas, full stops, if you do not create any difference in the copy, if you do not write in a systematic manner, your copy will not be given due consideration by the examiner. Okay, so always write your theory papers, always write your theory answers in points as much as possible. I would highly suggest if you start your answers in paragraphs for just 2 to 3 lines. For example, if you have been asked who is a consumer and what are consumer rights, if you have started writing about what is a consumer, like a consumer is a person who purchases goods for self consumption, बस आप इस लाइन को एक पैराग्राफ में लिखिए, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको कंज्यूमर्स का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, जस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, जस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर आंसर, स्टार्ट राइटिंग इन पॉइंट्स, डू नॉट राइट इन पैराग्राफ. It is very tedious to check the copies which are presented in paragraph or story writing manner. When you are giving your answers in points, write all the points at one place, put it under the box, or if you don't want to put it under the box, just write it simply at one place all together. Because जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करते हैं, उनके पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं, लाइक बल्क ऑफ कॉपीज होती हैं चेक करने के लिए. हो सकता है वो आपका पॉइंट्स चेक करते जाएंगे, कुछ पॉइंट्स उनसे स्किप हो जाए, या कुछ इंपॉर्टेंट आपने लिखा है जो आपकी कॉपी में एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकता है मार्क्स को, वो स्किप हो जाए, ठीक है. आप एक जगह पॉइंट्स रखेंगे तो एग्जामिनर के लिए भी थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है, ताकि वो स्पेशली आपको मार्क्स पॉइंट्स का ही मिलता है कि आपने क्या पॉइंट्स लिखा है. डिटेलिंग कोई वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन नहीं पड़ता है. आप एक जगह पॉइंट्स लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी आइडिया हो जाएगा कि आपको उस स्टफ, उस क्वेश्चन के बारे में कितना नॉलेज है, आपका कंटेंट क्या है, ठीक है. अगर किसी चीज़ को आपको लिटरेचर फॉर्म में लिखना ही है, स्टोरी फॉर्म में लिखना ही है, उसमें आप पॉइंट्स क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप नहीं भी क्रिएट कर सकते हैं आंसर स्टोरी फॉर्म में, तो भी आप उसे पॉइंट में ही 1-2 पॉइंट बनाकर लिखिए. बट अगर आप नहीं कर सकते
ऑलवेज चेंज द पैराग्राफ्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उससे भी आपका आंसर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनता है। जब भी कभी आप हेडिंग दे रहे हैं, हेडिंग को कोशिश कीजिए आप ब्लॉक लेटर्स में लिखें। अगर आप ब्लॉक लेटर्स में नहीं लिख रहे हैं हेडिंग को, तो उसे कुछ ऐसे फॉर्म में लिखिए ताकि वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड लगे, अलग से ध्यान जाए कि आपने कुछ लिखा है, वहाँ कुछ स्पेसिफिक लिखा है। हेडिंग्स को हमेशा हाईलाइटेड फॉर्म में लिखिए। कोई भी पॉइंट आप लिख रहे हो जिसे आप फर्दर डील कर रहे हैं, पॉइंट को अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन कीजिए। यूज 2 बॉल पॉइंट पेन्स, ब्लू एंड ब्लैक ओनली। डू नॉट यूज अदर इंक्स as they are not for students. Okay, use only blue और black ball point pen. अगर आप हेडिंग्स ब्लैक से लिख रहे हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ब्लू से लिखिए, या वाइस वर्सा अगर आप हेडिंग ब्लू से लिख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन ब्लैक से लिखिए। क्योंकि आप हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन दोनों अगर सेम इंक से लिखेंगे तो वो थोड़ा मेसी हो जाता है, इसलिए इंक आप चेंज कर सकते हैं वहाँ पे विथ अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, पुटिंग द हेडिंग्स इन अ बॉक्स। ये सारे कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपनी आंसर को प्रेजेंटेबल वे में दिखा सकते हैं। शो प्रेजेंट योर कॉपी इन एक्सट्रीमली क्लियर एंड रीडेबल मैनर। ओके, अगर थ्योरीज में आपसे कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ वर्ड्स गलत हो जाता है, कुछ स्किप हो गया, मतलब सॉरी, कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया आपने, या कुछ स्पेलिंग आपसे गलत हो जाता है, उसमें बस एक कट मार्क लगाइए उसे कट करने के लिए। ओवरलैपिंग मत कीजिए, स्क्रबल मत कीजिए उसे, बस एक कट मार्क लगाइए एंड दैट्स इट। बहुत ज़्यादा कॉपी को गंदा करने का ज़रूरत नहीं है। गिव योर आंसर्स टू द पॉइंट। ओके, इफ यू आर इन 10th or 12th standard and if you are in CBSE and ICSE format, आपको क्वेश्चन के साथ एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इतने मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको इतने वर्ड्स में प्रेजेंट करना है। ओके, डू नॉट स्किप दैट इंफॉर्मेशन और डू नॉट वायोलेट दैट इंफॉर्मेशन। अगर आपको 100 वर्ड्स में देना है किसी क्वेश्चन का आंसर को, तो उसे 200, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट बहुत ज़्यादा उस टारगेट से बहुत ज़्यादा या बहुत कम वर्ड्स में आंसर को प्रेजेंट मत कीजिए। और जो भी लिखिए टू द पॉइंट लिखिए, फालतू का लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको पॉइंट्स में लिखना है या जो भी उसका डिस्क्रिप्शन देना है, आंसर जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग लिखिए। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग जस्ट टू द पॉइंट लिखिए, शार्प टू द पॉइंट लिखिए। अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पॉइंट्स को थोड़ा एलैबोरेट कीजिए, बिकॉज उसमें आपका वर्ड लिमिट ज़्यादा जाएगा। बट इतना भी एलैबोरेट मत कर दीजिए, इतना भी किसी क्वेश्चन से मेंटली एंड इमोशनली अटैच्ड मत हो जाइए कि आप अपना सारा फोकस, सारा टाइम, सारा कंसंट्रेशन उसी क्वेश्चन पे दे दीजिए। होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिलेबस का कुछ पार्ट या कोई चैप्टर हमारा इतना फेवरेट होता है, हमारा इतना कमांड होता है उस पर कि उस पर हम मतलब बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो हमें बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो जाता है माइंड में। बट एग्जाम इज ऑल अबाउट गिविंग फोकस टू योर इंटायर क्वेश्चन पेपर, नॉट ओनली 1 क्वेश्चन पेपर। उस क्वेश्चन से इतना ज़्यादा कनेक्टेड मत हो जाइए कि आप उस क्वेश्चन को, अगर वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी है तो आप उसको 16 to 20 मार्क्स जितना वर्ड लिमिट में लिख दें। उससे क्या फ़ायदा होगा? सेव योर टाइम, सेव योर मार्क्स। एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने से ज़्यादा बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि आपको उसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा, बट दूसरे क्वेश्चन का जो एड ऑन मार्क्स है वो क्वेश्चन सिक्योर नहीं कर पाएगा ना। उस क्वेश्चन में हो सकता है आपका मार्क्स बहुत कम हो जाए। इसलिए गिव प्रॉपर टाइम टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड राइट टू द पॉइंट, डू नॉट राइट इररेलेवेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन इंटायरली। ये पार्टिकुलर पॉइंट बहुत लोग गलती करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मैनी अदर फैक्टर्स लाइक दैट। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप
कुछ क्वेश्चंस पे इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहता है। सेकंड पॉइंट होता है कि आप उस क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, आप श्योर नहीं, आपको लगता है आप लिखेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऐसा होता है कि लोग जस्ट छोड़ देते हैं क्वेश्चन कि क्यों लिखना, रहने दो, मैंने 2-3 मार्क्स का ही तो क्वेश्चन है, 6 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैंने कर ही लिया, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं होगा, रहने देते हैं, टाइम भी नहीं है। दिस इज नॉट द वे। Each and every marks counts. You need to give scope to examiner to give you marks. Okay? Like किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, 6 मार्क्स, भले ही वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन से आपको सिर्फ एक पॉइंट याद है, आप सिर्फ वो एक पॉइंट है लिख के आइए, एटलीस्ट आपको एक नंबर तो मिलेगा उसके लिए। कभी भी किसी क्वेश्चन को इंटायरली स्किप करके मत आइए, जो भी डाउट्स है आपके मन में इररेलेवेंट मत लिखिए, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आता है आपको वो लिख के आइए। CBSE, ICSE एंड एग्जाम्स फॉर्मेट्स apart from competitive exams are not like that where you will get negative marking। तो अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो क्या हुआ, मार्क्स कट हो जाएगा आपका, बट कई बार प्रेडिक्टेड चीज भी सही हो जाता है, इसलिए attempt that question and write at least something than nothing। Next point, to attempt multiple choice questions और objective questions। बहुत लोग इस confusion में रहते हैं कि objective type questions, multiple choice questions, one stroke question होता है, सही तो सही, गलत तो गलत, है ना। देखिए, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठे हैं, आप नॉर्मल एकेडमिक एग्जाम में बैठे हैं, जहाँ पे जो आप लिखेंगे उसके लिए मार्क्स मिलेगा, जो गलत होगा उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है आपको एकेडमिक एग्जाम्स में, ओके। इसलिए अगर आप उसे अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, सपोज ट्रू फॉल्स है, यस नो है, या कोई क्वेश्चन है उसका 4 मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिया गया है, आपको एक ऑप्शन पिक करना है, अगर गलत भी हो गया तो क्या, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा उसके लिए। बट अगर आप अटेम्प्ट लेंगे, कई बार प्रेडिक्शंस भी सही हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन ऑलमोस्ट आप 90% श्योर हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है, शायद यही है, हो सकता है वही ऑप्शन सही हो, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। इसलिए डू नॉट स्किप MCQs, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डू अटेम्प्ट देम, दे ऑल्सो एड ऑन टू योर मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, when you are giving your theory paper, especially when you are in higher standard, right, start your answer with quotation or line. For example, this is your health exam, physical health education examination, okay. In that examination you have been asked what is health. You can start your answer with a quotation, health is wealth, under semicolon, okay। quotations, paragraphs, phrase या certain lines को starting में denote करने से या उस line से answer start करने से आपका copy बहुत ही ज़्यादा presentable बनता है। ये एक बहुत अच्छा trick है किसी भी answer को start करने के लिए। जो भी आप paragraphs या quotation लिख रहे हैं वो आंसर से बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए। लाइक आप हेल्थ से रिलेटेड कोई कोटेशन दे रहे हैं, मनी से रिलेटेड कोई कोटेशन दे रहे हैं, वो आप तभी देंगे जब आपका क्वेश्चन मनी या हेल्थ से रिलेटेड है और आप जो आंसर लिख रहे हैं ये उससे रिलेटेड है। व्हेन यू आर गिविंग एनी डेफिनेशन, इफ यू नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन लाइक वर्ड टू वर्ड, एवरीथिंग, I mean everything you know about definition, if it is given by some scholar, some educationist, some economist, then only write their name। कोई भी आप definition लिख रहे हैं जैसे किसी economist या किसी scholar या किसी भी philosopher ने define किया है, अगर आपको वो definition पूरी तरह से like word to word आता है, then only ही वो definition लिखने के बाद उस स्कॉलर, उन एजुकेशनिस्ट का नाम लिखिए। अगर आपको ऐसा लगा कि डेफिनेशन लिखने के समय आप कुछ वर्ड्स भूल गए हैं, कुछ मिस हो रहा है आपसे, कहीं स्टक हो रहे हैं आप डेफिनेशन लिख दीजिए, आपको जितना आता है, जैसे वर्ड्स को बीच में आपको अपना कोई वर्ड कनेक्ट करना है, बट डोंट राइट द नेम ऑफ दैट
educationist or scholar or economist, because he has not used that words which you are adding that extra words. Do not write his or her name. Focus on time management. Do not get stuck in one question. Focus your time management in a way that during a particular during a particular span of time you will answer this question, and after that time is over, you will skip the question and jump to the next question. Do not give all your time to one particular question, leaving all your questions unanswered. When you're writing answers, underline important keywords or points or highlight them, like you are writing any scholars or any educationist's name, some dates, some places, some events. Always underline that. It gives extra attention of the examiner that what you have written in a specific manner. Support your answers with diagrams and flowcharts. Okay, whenever you are writing any answer, make a flowchart, write entire points in a flowchart, or make any bullets, write all the points there only, and then describe what you're trying to write. And if possible, if you can make any diagrammatic presentation of that particular answer, definitely do that. It also add presentation to your paper. Always give relevant illustrations or examples to clarify your answer, to clarify your point. For example, if you have been asked, what do you understand by economic and non-economic activities, and what is the difference between the two? Okay. When you are defining economic activities, what are the categories that comes under economic activities? Give examples to support your answer so that it is very clear and crisp. And same as if when you are writing what is non-economic activities, then and there also write examples. Giving examples and relevant illustrations shows the clarity of your knowledge and make your answer complete. Always answer your questions section wise, like complete the entire section at one place only. Like if you have pick section C to solve first, okay, you have solved two questions of section C, and then you started section A, and then afterwards you are doing other questions of section C. Never do that. There might be chance that examiner get to see the another section and you can lose your marks. So solve the entire section at one place. And if you are getting stuck in any question, like if you are confused in any question, leave the space then and there only. Then jump to the next section. And when you have completed your entire answer sheet, then come back to that question which you have left from some particular section, then solve it. So with this, we wrap up our today's topic of theory presentation tips. Do try these tips and tricks in your next exam. You are surely gonna benefit it and your paper will be extremely presentable. Keep learning, keep growing. Take care and bye.